And in this lecture, how to implicate the parties in a suit, thereafter value the suit, and uh, calculate the court fees and proper documents which are required to attach with the plaint. In order to make a proper parties any suit, first of all, what provisions you are need to study, एंड यू आर नीड टू स्टडी इन डिटेल. आपको जो है कौन से प्रोविजन या लॉज हैं जिसके पढ़ना समझना बहुत नेसेसरी है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर वन, कंप्लीट ऑर्डर वन जो है दैट विल गिव यू गाइडलाइंस who can be parties as a plaintiff, who can be joined as a defendant in a suit. So order one, this is the slide give you thorough guidelines regarding the joinder and joinder of the plaintiff and joinder of the defendant. So who should be joined as a plaintiff? Order 1, rule 1, and normally we call it joinder of the plaintiffs. And who should be joined as defendant? Order 1, rule 3, joinder of the defendant. And another integral part of the suit, what cause of action should be joined in the suit, which describe in order 2, rule 3, joinder of the cause of action. And particular to be contained in a plaint, order 7, rule 1 of the plaint. So these are the integral part of the any suit, and their procedure has been provided. These provisions which are appearing on your screen in a slide. First of all, it should be remembered that before proceeding to draft a plan, the preliminaries to be settled are parties to the suit. जो सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी सूट कोई भी प्लान ड्राफ्ट करने से पहले जो इनिशियल जिसके हक में डिक्री कोर्ट ने देनी है और जिसके अगेंस्ट जज डिक्री अनाउंस करनी है और समन नोटिस इशू करने हैं, तो हाउ टू इम्प्लीकेट पार्टीज इन अ सूट, तो उसका क्या प्रोसीजर है, that we are going to learn today. So first of all, we are going to read out the content and language of the order 1 rule 1. order 1 rule 1 क्या कहता है, फिर हम जो हैं that will we will able thereafter to make proper party to a suit. All persons may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if such person brought separate suits, any common question of law and fact would arise. So we can make and plaintiff join in the suit area of the plaintiff. So all the plaintiffs, whether jointly or individually, they share the same transaction, and they share the same facts of the case, and the question of law will be the common in a suit. So all parties will join in a suit singly. There no need to file separate suit from every party, as well as and need to not file separate suit on each cause of action. अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है किसी भी नेचर का, अगर कोई सिविल सूट है जिसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो डिस्प्यूट है, उसके फैक्ट्स जो हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, और उसमें उससे रिलेटेड जो डिफेंडेंट्स हैं वो उससे जो उसका राइट जो है सबका उसी एक डिस्प्यूट में है, तो उन वो सब प्लेंटिव्स और काज ऑफ एक्शन वो सारे एक ही सूट में डिसाइड होंगे. कानून में जो है
सेपरेट सूट दाखिल करने के लिए सेपरेट cause of action, same disputes, but there are more than one disputes on same subject matter, there no need to file by the all parties separate suit. हर जो है पार्टी सेपरेट सूट दाखिल नहीं करेगी, ना ही जो है एक प्लेंटिफ सेम डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे राइट्स अगर इंगेज हैं तो उसके लिए वो सेपरेट सूट दाखिल करने की उसको ज़रूरत नहीं है। एक ही सूट दाखिल होगा जिसमें एक प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ इम्प्लीकेट हो सकते हैं एज अ प्लेंटिफ, और सारे कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड एक ही ट्रांजेक्शन से है और एक सेम प्रॉपर्टी है, तो all the dispute which will arise from the same cause of action will में सेपरेट सूट दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप एक ही सूट में जो है सब पार्टीज़ का एक ही नेचर का जो है अगर डिस्प्यूट है तो वो भी डिसाइड हो सकता है। हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ defendant now. All persons may be joined as defendant against whom any right to relief in respect or arise out of the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if separate suits were brought against such persons, any common question of law or fact would arise. Defendants जो हैं there the same rule will apply. All persons may join as a defendant against whom any right to relief, जिसके अगेंस्ट किसी का राइट है और उस राइट में से उसको रिलीफ मिलना है, उसके अगेंस्ट रिलीफ उससे मिलना है, तो उस सेम ट्रांजेक्शन से तो उसको ही एज अ डिफेंडेंट हमने ज्वाइन कराना है किसी सूट में, ना कि हम किसी को भी जिसमें हमारी ख्वाहिश पे कोई भी पार्टी जो एज अ डिफेंडेंट नहीं बन सकती। उसके लिए वी मस्ट हैव अ strong reasons strong reasons to present before the court, whether why court will issue the summon against such and such defendant। कोर्ट को आपने कन्विंस करना है कि कोर्ट डिफेंडेंट्स को समन क्यों इशू करे, whether they will able to give if relief will give you, whether court can enforce the decree against the defendant in order to give you a relief। तो उसके लिए जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो कॉज ऑफ एक्शन एक्रू होगा या राइज होगा विद द सेम ट्रांजेक्शन, तो उसमें जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे वो एक ही सूट में होंगे। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो उसके अगेंस्ट अलग अलग सूट दाखिल नहीं होगा, एक ही सूट में आप एरे ऑफ डिफेंडेंट्स में सबको पार्टी इम्प्लीकेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड इंग्रेडिएंट, अगर कोई डिस्प्यूट जो है जिसके वजह से आप सूट फाइल करते हैं, तो व्हाट cause of action should be joined in the suit that is the order 2 rule 3, and the language of the that provision is as under: save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several cause of action against the same defendant or the same defendant jointly, and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such cause of action in the same suit। एंड उसी जो है रूल 3 में जो है सेकंड जो है क्लॉज नंबर 2 है, वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड the jurisdiction of the court as regard the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit। अगर किसी अब दिस इज अ वेरी complicated point in a suit कि आप where first of all you must know what is the cause of action, which is the bundle of facts actually which cause the file the suit in the court of law, and court of law will decide adjudicate list
which before the judge on the basis of those bundle of facts which are proved before the court through lead the evidence on such and such facts. And actually that is the dispute between the parties in the court of law. That is the cause of action, जिसको हम cause of action कहते हैं, मतलब your cause in action जो है before the court, which cause will be in action before the court, which are the disputed regarding any right, any property which brought before the court. तो जो वो कॉज ऑफ एक्शन है, अगर जो सीरीज ऑफ कॉज एक ही प्रॉपर्टी से या एक ही राइट से रिलेटेड, एक नहीं ज्वाइंटली कॉज ऑफ एक्शन जो है अगर बहुत सारे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जो आपने किसी ने रेंट पे जो है आगे रेंट पे किसी ए ने जो है बी को प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दी है ऑन द बेसिस ऑफ द मंथली रेंट, उसको वो रेंट पे करना है और उसको रेगुलरली उसको यूटिलिटी बिल्स देने। एंड पार्टी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन कीप द प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन and do not damage the things attached in the property. But after rented out the property to someone, कुछ अरसे के बाद that person stop to pay the rent, and not only उसने रेंट पे स्टॉप कर दिया रेंट पे करना, बट यूटिलिटी स्टोर्स भी नहीं वो उसने स्टॉप कर दिए पे करना, और प्रॉपर्टी के अंदर इसकी प्रॉपर्टी के कुछ जगहों को डैमेज भी कर दिया। तो अब जो है वो जो टेनेंट है, अब लैंडलॉर्ड के पास जो है क्या रिलीफ्स हैं और उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं। उसको तो एक तो उसका रेंट जो है वो जो उसको नहीं मिल रहा, उसको एक तो वो रेंट की रिकवरी है, एरियर्स ऑफ द रेंट्स एंड फ्यूचर रेंट्स जो कॉज ऑफ एक्शन डिस्प्यूट है वो अराइज हो गया। एंड नेक्स्ट जो है वो यूटिलिटी बिल्स पे नहीं कर रहा, उसके एरियर्स है। एंड थर्ड वन है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया है, तो उसके डैमेज जितना डैमेज जो है वो प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसने, उसकी ही कंपनसेशन वो उससे डिमांड करनी है। एंड फोर्थ वन जो है वो विलफुल डिफॉल्टर जो है टेनेंट, अब उसको वहाँ से जो है इजेक्ट कराना है और वो जो जगह है वो वैकेट करवानी है। अब ये डिस्प्यूट है जो लैंडलॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने लेके आएगा। डिस्प्यूट क्या है? एक प्रॉपर्टी जो उसने रेंटेड आउट की थी, अब उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है, देर आर ट्रांजेक्शन सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन विच आर डिस्कस बिफोर द कोर्ट। अब उसके लिए जो है लैंडलॉर्ड सेपरेट जो है कोई सूट दाखिल नहीं करेगा। उसके लिए एक स्पेशल लॉ है, रेंट जो है जो रेंट प्रॉपर्टी है उसके लिए एक स्पेशल लॉ है जो रेंट कंट्रोलर के सामने ये मैटर डिसाइड होगा। उसको हम रेंट एप्लीकेशन कहते हैं। सिंध रेंट एंड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत वो एप्लीकेशन हम रेंट कंट्रोलर को फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन में सारे जो प्रेयर्स हैं हम कोर्ट से डिमांड करेंगे। उसके लिए हमें कोई सेपरेट सूट या सेपरेट कोई एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो रिलीफ है वो एक ही एप्लीकेशन में सारे या कोई एक जो जिसको हम प्रूव कर जाएंगे तो वो हमें कोर्ट विल ग्रांट अस दैट रिलीफ। तो ये तो था कि हम किसी सूट में कॉज ऑफ एक्शन, और उस आगे जो इसका सब रूल 2 है, दैट विल डिस्क्राइब दैट कि कोर्ट फीस जो हम कैलकुलेट करेंगे सूट की, तो वो हर कॉज ऑफ डिपेंड अपॉन दी ईच कॉज ऑफ एक्शन, और उस हर कॉज ऑफ एक्शन के जो एक रूल एंड प्रोसीजर प्रोवाइडेड है जो है कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 7 में, कि आपके सूट की नेचर क्या है तो उसकी कितनी कोर्ट फीस होगी। तो कोर्ट फीस जो है वो जो डिसाइड जो कैलकुलेट होती है, देयर आर 2 वेज। एक तो प्लेंटिफ एज पर दी सेक्शन 7 खुद
जो है उसके वैल्यूएशन सूट की वो खुद करता है एज पर विशेस ऑफ द plaintiff's valuation as per the principle provided law provided in section 7 of the Court Fees Act, and other category of the suit which will fall under the uh, market value price, जिसको हम एड वोलेरियम जो है रेट के एड वोलेरियम एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एज पर दी मार्केट वैल्यू कि जिस अगर कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जो डिस्प्यूट है तो उस प्रॉपर्टी की उस वक्त करंट मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज द सेकंड कैटेगरी। तो उस हिसाब से हम कोर्ट वैल्यूएशन करते हैं। फिर अगर मार्केट वैल्यू में हर कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर सूट डिक्लेरेशन का सूट है तो जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द प्लेंटिफ हु विल कैलकुलेट द प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है या नेचर क्या है आपके, अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई इन्फोर्समेंट का कोई केस है तो उसकी कंसिडरेशन कितनी है, उस पर कोर्ट फीस जो है वो डिसाइड होगी। अगर ओनली प्रॉपर्टी अटैच है सूट के साथ उस डिस्प्यूट जो है रिलेटेड, तो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है उसको जो है मद्देनजर रखा जाएगा। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है उसकी कैंसिलेशन का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें जो अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच है उस जो रजिस्ट्रेशन के साथ तो उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है कोर्ट फीस अटैच होगी। तो वो डिपेंड करता है कि काज आपने जो सूट का टाइटल है उसकी नेचर है वो क्या है। तो जितने कॉज ऑफ एक्शन होंगे जितने रिलीफ हैं तो सबके अलग अलग से आप कोर्ट फीस कैलकुलेट करेंगे। फिर एग्रीगेट अमाउंट जो होगा उसके हिसाब से फिर एक परसेंटेज है दैट विल जो है हैज़ टू बी पेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है वो है 15,000। सो that is the principle is in previous class I explained that cause of action is very much important in any suit क्योंकि वो that cause of action he decide cause of action he decide करता है कि who may be joined as a plaintiff, who may be joined as defendant, and what court fees has to be paid in the court of law. So you must have definite cause of action, and you must know what is the cause of action and how cause of action जो है join in the suit, and that thereafter जो है आप जो कि ड्राफ्टिंग है उसके पार्टीज की प्रॉपर तरीके से आप वो कर सकेंगे। Parties to the suit, this order deals with the subject of the parties to suit and among other things that the joinder, misjoinder and non-joinder। देखिए अगर पार्टीज जो है उसको हम कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द ट्रू प्रिंसिपल इन द लॉ वेदर पार्टीज आर मिसजॉइंडर एंड वेदर पार्टीज आर द नॉन ज्वाइंडर। तो नॉन ज्वाइंटर में फिर जो है प्रॉपर और नेसेसरी पार्टीज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज। मिस ज्वाइंटर कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है कि आपने जिसको पार्टी तो किया है सूट में बट वो wrongfully you have implicate whether on the basis of the malified intention or ulterior motive or by mistake and due to not understanding the proper facts and cause of action, you implicate a wrong parties in the suit। अगर किसको wrongfully in the name of erase of the parties आपने किसी को पार्टी implicate किया तो उसको हम कहेंगे मिस ज्वाइंटर। या जिसको ज़रूरी था नेसेसरी था पार्टी बनाना एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडर और उसको आपने रॉन्गफुली नहीं बनाया या इंटेंशनली नहीं बनाया तो उसको हम नॉन ज्वाइंटर कहेंगे। तो ये प्रिंसिपल है मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर फॉर द ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज ऑफ द सूट एंड ज्वाइंटर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। although although joinder of the plaintiff is in one suit is permissible if the condition
in order 1 rule 1 are satisfied, the court has power to order separate trials when it appears that a single suit by several plaintiffs may embrace the trial. Now, although the joinder of the plaintiff in one suit is permissible, कि जो एक ही सूट में आप बहुत सारे प्लेंटिफ्स जो है उसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ऑर्डर वन रूल वन, और आफ्टर द सेटिस्फिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स डिफाइंड इन द ऑर्डर वन रूल वन, द कोर्ट हैज पावर, कोर्ट के पास पावर है टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल्स के, अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं और उनकी वजह से सूट जो है वो लिंगर ऑन हो रहा है, सूट में जो है कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं डिसाइड करने में, तो कोर्ट एम्पावर टू सेग्रीगेट, और जो है उसको जो है कोर्ट जो है इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन मैटर लिस्ट ऑन टाइम, तो उन जो सूट्स को उसको सेपरेटली उसको डिसाइड कर सकती है, उसके हर प्लेंटिफ की सेपरेट ट्रायल भी चला सकती है. That is the order 1 rule 2. In other words, order 1 rule 1 allows a number of plaintiffs with the same right to relief to join in one suit instead of bringing separate suits. Next slide जो है उसमें, that is the law which is defined, provided in Code of Civil Procedure. All these essential must occur in every suit properly framed. Order 1 deals with the joinder of the parties, and Order 2 deals with the frame of suit. In framing of suit, the following three kinds of misjoinder must be guarded against. तो misjoinder of the plaintiff, अगर misjoinder उसको कहते हैं, अगर गलती से wrongfully कोई plaintiff बनाए तो what will be the procedure? If two or more persons are joined as plaintiffs in one suit in a case not covered by the Order 1 Rule 1, the result is a misjoinder of the plaintiff. If that objection not taken at earliest stage, it will be deemed waived. अगर उसको इनिशियल जो स्टार्ट होता है, जो शुरू का टाइम सूट का, अगर ट्रायल अभी चल रही है, तो इसको पे अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया, इट मींस उसने अपना जो राइट टू ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट उसने उसको वेव कर दिया. That thing defined in Order 1 Rule 13. Where such objection was taken, it is well founded, the court should not dismiss the suit. अगर मिसजॉइंट, अगर गलती से रॉन्गफुली कोई पार्टी है, उसको इतराज़ है कि मुझे रॉन्गफुली इसमें इम्प्लीकेट किया है, और उसको राइट टाइम पे उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो इसकी बुनियाद पे सूट जो है वो डिसमिस नहीं हो सकता. बट एज पर द ऑर्डर 1 रूल 9, बट द प्लेंट में बी अमेंडेड as per the requirement of the Order 6 Rule 17, and striking out the name of the plaintiff improperly joined. वो जो नाम जो है wrongfully या intentionally with the modified intention उसको अगर implicate किया गया है, तो उसका नाम strike out हो सकता है from the array of the parties, them from the list of the arrays of the parties in a suit. Order 1 Rule 10 Sub Rule 2, in other words, such objection of the misjoinder is a plaintiff is not fatal to suit. मतलब वो इतना सूट के लिए फैटल नहीं है, वो इतना हार्म नहीं करता, बट प्रोसीजर जो है वो लिंगर ऑन हो जाता है इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट थिंग वेदर पार्टी इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वेदर पार्टी इज मिसजॉइंडर. अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि उसको उसके सूट में जो है इंटेंशनली जो है उसको उसमें पार्टी नहीं बनाया गया, देन उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ द पार्टीज. वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में उस पर हम उसको डिस्कस करेंगे. अभी दूसरा है कि मिस जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट. ये तो था मिस जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ. मिस जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट, इफ two or more persons are joined as defendant in one suit in a case not covered by the Order 1 Rule 3, that is a misjoinder of the defendant as in the in the case of the plaintiff. So in the case of defendant, same procedure will be adopted. Discuss supra. अभी जो हमने डिस्कस किया था प्लेंटिफ के लिए, वही प्रिंसिपल जो है अप्लाई होगा, वही प्रोसीजर अप्लाई होगा
डिफेंडेंस के लिए। तो आज हमने जो व्हाट वी हैव लर्न न्यू थिंग टुडेज क्लास कि